लोग अशोक यादव को सरकारी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने अशोक यादव को मृत होना बताया। तो एज पर द प्रोसिक्यूशन केस इटसेल्फ, माय लॉर्ड इंक्वायर्ड लास्ट टाइम वेदर दिस बिकॉज the offense is under section 201 at the most for me। जब ये पूरा हो चुका था उसके बाद स्कॉर्पियो में आके कॉज ऑफ डेथ क्या? yes, cause of death is lordship hemorrhage because of injuries, because that the doctor has said that can be because of fall, accident, or it can be because of So Sanju was also in the Scorpio. no lordship। संजू और ब्रजेश जो थे वो बाइक में थे। संजू और ब्रजेश बाइक से आ रहे थे और फिर ब्रजेश ने ये 3 मारा। Now lordship, in total there are 5 injuries। In total there are only 5 injuries। That is exhibit P27, I will demonstrate 5 injuries or as has been narrated। एक सर पे, एक पेट में, एक पीठ में, एंड बाकी जो 2 इंजुरीज है नीज में है, गिरने से लगी है जो, एंड 5वीं है अब्रेशंस बिकॉज ऑफ द फॉल, ये वहां से गिर भी गए थे। उसके बाद जब हम आए तो हमने, हमारे ऊपर ये कि हमने उसको वहां से हटा के दूसरी जगह डाल दिया। दिस इज द टोटल एलिगेशन एज पर द प्रोसिक्यूशन केस इटसेल्फ। नाउ लॉर्डशिप, टू डेमोन्स्ट्रेट that these persons who are claiming that they have seen the incidents where they have not seen the incidents, to demonstrate this, I had taken my lord to exhibit P14। Exhibit P14 lordship, this is PW14, exhibit P14। This is the intimation by the Dr. Vikas Jaitpuria, थाना प्रभारी, that सूचनार्थ है कि आज दिनांक 17/12/15 को 3:20 पर AM 3:20 AM बजे के लगभग एक व्यक्ति अशोक यादव सन ऑफ दिस इटारसी को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। दिस इज द इंटीमेशन ऑफ द डॉक्टर। काइंडली सी PW15, exhibit P15। दिस इज PW3। दिस इज लॉर्डशिप दिनांक समय सूचना 17/12/2015 के 4:40 AM। कारण मृत्यु अज्ञात। एग्जिबिट P15 लॉर्डशिप। एग्जिबिट P15, दिस इज PW3, एग्जिबिट P15। कारण मृत्यु अज्ञात। मैं DSPM अस्पताल में इटारसी में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत हूं। ड्यूटी डॉक्टर विकास जैतपुरिया। मृतक व्यक्ति की सूचना मेमो भेजकर निम्न प्रति थाना प्रभारी इटारसी सूचनार्थ है कि आज दिनांक 17/12/2015 को 3:20 AM बजे लगभग एक व्यक्ति अशोक यादव सन ऑफ दिस निवासी के दिस मृत अवस्था में अस्पताल लाया है, सिर में चोट है। नाउ लॉर्डशिप, काइंडली सी एग्जिबिट P22, लाश का पंचनामा लॉर्डशिप। एग्जिबिट P22। Yes, exhibit P22 lordship, there are 5 witnesses: Chetan, Shekhar, Sandeep, Yogesh and Krishna। Now lordship, out of these, none of these persons who were present on the spot as per the prosecution, these are not the 5 persons। PW20 has categorically stated कि all these 5 persons are close relative of the deceased Ashok Yadav। इसमें से सिर्फ एक Chetan, PW8, has been examined by the prosecution। Shekhar, Sandeep, Yogesh and Krishna has not been examined by the prosecution। Chetan is PW8 lordship। ये घटना स्थल पे थे। बाकी जो है ये घटना स्थल पे थे। यस, ये इनमें से 5 में से कोई भी घटना स्थल पे नहीं थे। ये जो थे, ये these are close relatives of Ashok Yadav and all these 5 persons। इनकी मौजूदगी में बॉडी रिकवर हुई है। यस लॉर्डशिप। और ये 5 में से जो भी बता रहे हैं कि घटना जिनने देखी है, जो रिलेटिव्स हैं, these are not those persons as eye witnesses। Now इसमें सिर्फ एक एग्जामिन हुआ है, बाकी 4 they have not been examined by the prosecution। Now lordship, kindly see exhibit P27।
Yes. Exhibit P27, Lordship. Injuries are as follows. MLC at 9:50 a.m. Dr. Nitesh Deswai. 5 injuries, Lordship. Exhibit P27. Mr. Arvind Singh, Yes. Madam will not will permit you to continue provided he is able to answer our query. Is it correct that as per prosecution story, when assault had taken place, thereafter they came in the Scorpio and took the body and thrown the body to somewhere else? Is it correct? It is correct, but there is a three direct eyewitnesses. Four eyewitnesses. If this is correct, Yes. how offense under section 302 is made out against them? Their argument is that after assault, when he was already died, if they have taken the body from A place to B place, at best an offense under section 201 can be made out. How 302? पहले स्पॉट में मारपीट की उस समय वो मारपीट करने वालों में ये नहीं है, ये स्कॉर्पियो में है। संजू है। दो तीनों है सर। एविडेंस एफआईआर में भी है हमारे। एविडेंस है सर। तीनों FIR फिर से पढ़ देते हैं हम। FIR में नहीं है। FIR में नहीं है। तीनों का नाम। FIR में नहीं है। आई लेकिन विटनेसेस ने बोला है कि आप आई लोगों ने विटनेस मारा ने कहा है, आई विटनेस ने सेम रेप्लिकेट किया है, लेकिन बाद में ये ऐड किया है कि जब आपने ये 3 डंडे आपको मारे पीछे से, उसके बाद संजू ने लात घूंसों से मारा, आई विटनेस ने कहा है, और उसके बाद ये कहा है कि व्हेन दीस पर्संस ये चारों मारते हुए ले गए। दिस लॉर्डशिप डज नॉट कोरोबोरेटेड विद द इंजुरीज, देयर आर ओनली 5 इंजुरीज। बस उसको ले जाके बाय फिस्ट किसने मारा है, ऑमनिबस एलिगेशन। Let us see the FIR. Who lodged the FIR? PW1 लॉर्डशिप। रंजीत आई विटनेस। FIR देख लीजिए लॉर्डशिप। Very, very small letters. Yes. यस मैम। तो इन चारों that this is the replication lordship. This is the replication of para 2 only. I can read. This is my lord will find राजा मॉल संजू तिवारी मोटरसाइकिल चला रहा था, ब्रजेश तिवारी बैठा था, सिर पर रॉड मारी, अशोक यादव के बैलेंस खराब हो गया, वह गिर गया, सीने और पीठ पर रॉड मारी। उसी समय हम चारों आवाज देते हुए पास दौड़े, तभी एक स्कॉर्पियो सफेद रंग की स्टेशन की ओर से आई, जिसमें सुन्ना महाराज, विवेक तिवारी निवासी टमंटू, राजा मोहल्ला, गरीब लाई मिले। हम जब उन्हें रोकने की कोशिश तो टमंटू ने पिस्टल निकाली और उड़ा दूंगा। इन चारों ने अशोक यादव को स्कॉर्पियो में डालकर पावर हाउस की तरफ ले गए। वहां से पीपल मोहल्ला मस्जिद के पास स्कॉर्पियो से नीचे डालकर भाग गए। हम सभी लोग अशोक यादव को सरकारी हॉस्पिटल ले गए। Now improvisation in PW1 ने क्या कहा आपने? PW1 lordship, I will read PW1. सेम यही कहा है। आफ्टर दैट ओनली वन इम्प्रोवाइजेशन ही हैज मेड। मेरा चचेरा भाई है और अशोक यादव मोटरसाइकिल के पीछे संजू यादव। Just a minute. PW1 लॉर्डशिप। Yes. तो लगभग 15-20 मिनट पश्चात अशोक, दिस इज लॉर्डशिप फ्रॉम टॉप 7th लाइन। आई विल रीड द 4th लाइन। मैं, मेरा चचेरा भाई राजेश यादव रेलवे लाइन के ऊपर वाले ब्रिज के ऊपर तिराहे पर खड़े थे। हमारे अलावा पहाड़ी और सुशील यादव भी थे। वहां पर हम अशोक भैया का इंतजार कर रहे थे। अशोक यादव दीपक शर्मा को स्टेशन के मंदिर पर छोड़ने गए थे। लगभग 15-20 मिनट पश्चात अशोक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। अशोक यादव की मोटरसाइकिल के पीछे संजू एवं ब्रजेश तिवारी मोटरसाइकिल के पीछे आते दिखे। आरोपी गण की मोटरसाइकिल को आरोपी संजू चला रहा था और पीछे ब्रजेश बैठा था। मस्जिद के पास मीनार के पास आकर संजय तिवारी ने अशोक की मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया और ब्रजेश तिवारी ने अशोक के पीछे
से सर पर रॉड मारी, जिससे अशोक यादव नीचे गिर गए। फिर ब्रजेश तिवारी ने अशोक को रॉड से सर, पीठ और छाती में मारपीट की। ये गिर भी गए लॉर्डशिप और ये मारा भी। और फिर संजय तिवारी ने लात घूंसों से अशोक को मारा। ये इसके बाद और भी मारा। फिर हम चारों आवाज देकर दौड़ने के बचाने लगे, तो हम लोग थोड़ी दूर पहुंचे ही थे, तब एक स्कॉर्पियो आई जिसमें सतीश, टमंटू, सुन्ना महाराज और विवेक निकले। टमंटू ने हमें पिस्तौल निकालकर बोला, धमकाया, गोली से उड़ा देंगे। तब हम लोग डर गए और रुक गए, और उसके बाद इन चारों ने मिलकर अशोक के साथ मारपीट की। ये है, ब्रजेश के पास रॉड था, सुन्ना महाराज के पास डंडा था, बाकी लात घूंसों से मारपीट की। और इसके बाद आरोपी ने अशोक को मारते हुए घसीटते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी में डाला और पावर हाउस की तरफ ले गए। हम लोगों ने उनका पीछा किया, तब वो ब्रिज के नीचे अशोक यादव को छोड़कर वहां से भाग गए। आई विटनेस कितने हैं? Eyewitness lordship, listed witnesses are 4, but examined witnesses are PW1 and PW2 and lordship PW9 PW9. and PW10, my lord. No, PW9, PW10 doctor Oh, lordship. sorry, PW9. 4 eyewitness. 4 eyewitnesses, listed eyewitnesses in 1, the 2, FIR. 3. 1, 2 and 9. 1 to 9. नहीं, एक और है ना। प्रदीप एलिया अच्छा। पहाड़ी यादव। हाँ, वो PW9 है lordship. 1, 2 and 9. 1, 2 and 9. 3 ही हुए ना, 4 कहाँ हुए? These people have तीनों ने सेम लाइन में बोला है। सेम लाइन में नहीं बोला है लॉर्डशिप। इन लोग ने इनिशियल स्टोरी के हिसाब से दे हैव ये भी स्कॉर्पियो से आया, फिर इन्होंने भी मारपीट की, ये सबने बोला है। हाँ, लात घूंसों से मारपीट की। P9 ने हमारे खिलाफ नहीं बोला है। लात घूंसों से मारने वाला जो स्टेप है वो P9 ने हमारे खिलाफ नहीं बोला है, संजू के खिलाफ बोला है। नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि राड से, ब्रजेश ने राड से मारा। अच्छा, बोला बाकी ने बोला आपके। है मैम। Now, Lordship, what we want to bring, What is the nature of injuries? nature of injuries, Lordship. Kindly see. On this only, my Lord has put a question to us. There are only 5 injuries, Lordship. जजमेंट में आया नहीं? Judgment में आया है. पेज 28। Lordship? Para 19 में आया है, Lordship. Para 18 onwards. हाँ, 18 ले लो, 19 में आया है, Lordship. 16 में। 16 ये जो आई विटनेसेस हैं, इन्होंने कहीं बोला है कि आपने कोई वेपन यूज किया मारते समय, No, Lordship. या लात घूंसों से मारा, कुछ बोला है ऐसा? बस लात घूंसों से मारा हमारे खिलाफ। और एंड लॉर्डशिप, जो इंजुरीज केवल जो 5 है एक्सटर्नल, ऑन दैट द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर इज यस गवर्नमेंट, मतलब काइंडली अप्रिशिएट पैरा 30। ये जो नेचर ऑफ इंजरीज हैं, जी। ये किक्स एंड फिस्ट से तो नहीं आएंगी, और आपकी जो एफआईआर है उसमें मारने के बाद सिर्फ स्कॉर्पियो में डाल के ले जाने की बात है ना। एफआईआर में ये नहीं है कि उतर के इन लोगों ने भी मारा, एक्सेप्ट संजू। वी आर कंसर्न एट प्रेजेंट विद सुरेंद्र एंड विवेक। संजू का भी सुनेंगे इनको अलग से। सर ये जो कोर्ट स्टेटमेंट में सुरेंद्र तिवारी को सन्नू, इसने डंडे से भी मारा है। कहाँ, किसने ये सब पैरा 30 देखे सर, 30। नहीं, किस विटनेस ने बोला है ये डंडे से? मतलब तीनों विटनेस के बारे में दिया गया। क्यों नहीं? क्योंकि अभी इन्होंने पढ़ा ना स्टेटमेंट, उसमें तो कहीं नहीं है। कोर्ट ने मारपीट की भर लिखा है, चारों ने मिलकर मारपीट पैरा की। 16 देखें, वो पैरा 30 देखें सर, पीछे पेज नंबर 16 रिलेवेंट पोर्शन पढ़, कैरिड वाला
Yes. ब्रिज के ऊपर 30-35%। ब्रिज के ऊपर मस्जिद की मीनार, जो ब्रिज के बाजू में नीचे बनी मस्जिद की मीनार है, और उक्त मीनार ब्रिज के ऊपर दिखती है, के पास आकर आरोप Got it, Malik? सुरेंद्र सुनना है। PW1 ने बोला सुरेंद्र ने डंडे से मारा, सुनना है। डंडे से मारा, डंडा लिया था, मारा नहीं है लॉर्डशिप, ये लिखा हुआ है। आई जस्ट रेड। सुनना है। इसकी इंजुरीज केवल 5 है लॉर्डशिप, इंजुरीज आर 5। And these persons who are saying, who are claiming, the prosecution says, Lordship, kindly see PW21. My Lord will appreciate, जो दीपक तिवारी पंडित जी को लेके इन लोग जा रहे थे, उन्हीं ने बताया PW21 में kindly be seen, Lordship. This is very important. This person has met with an accident. वो टकरा के नीचे गिर गए, ब्रिज के नीचे इनका पाए गए, और उसके बाद से they have made the story after the postmortem. PW21, Lordship, paragraph number 1 and 4, Lordship. Paragraph number 4, Lordship. PW21. In examination in chief, he has said, रात करीब 3 बजे मेरे घर 2-3 लोग आए थे, जिसमें दिनेश सोनकर, गुड्डू तोमर, एक अन्य व्यक्ति, जिन्होंने मुझसे पूछा कि अशोक कहाँ हैं, तो मैंने कहा था कि घर चले गए। पैराग्राफ नंबर 4, रात को 3 बजे दिनेश सोनकर गुड्डू के साथ 2-4 लोग के साथ थे। स्वतः कहा कि दिनेश गुड्डू को जानता है, ये कहना गलत है। स्वतः कहा कि उन्होंने पूछा कि अशोक कहाँ है, तो मैंने बता दिया कि वह मुझे छोड़कर अपने घर चले गए। रात को लॉर्डशिप दे वर सर्चिंग फॉर द पर्सन, मिसिंग पर्सन, अशोक डिसीज्ड, और ये जिनको छोड़ के गए थे पंडित जी को, पंडित जी का कहना है इन लोग हमारे घर उनसे पूछने आए थे कि वो कहाँ है अशोक। तो इनका कहना है यह सही है कि यदि उन्हें अशोक के बारे में पता होता तो वो मुझसे पूछने नहीं आते। मैं इन्हीं लोगों के साथ अस्पताल गया था। आज मुझे याद नहीं कि उस समय कितने बजे थे। यह सही है कि रात को ये लोग आए थे और अशोक को अस्पताल में देखने के बाद 3 घंटे के बाद निकला। यह सही है कि अस्पताल में किसी ने बताया कि नहीं बताया कि अशोक को कैसे चोट लगी है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन दिस केस, दैट इज PW23, लॉर्डशिप। My lord will see at paragraph number 13. Lordship, paragraph number 13, first 5th line. सही है कि दिनांक 17/12/2015 को 13:31 अर्थात दिन के 1:30 बजे अपराध दर्ज किया गया। यह कहना सही है कि घटना के 12 घंटे के बाद अपराध दर्ज किए गए। यह कहना सही है कि FIR दर्ज करने से पहले तथा घटना के पश्चात यदि कोई जानकारी मिलती तो देहाती नालिसी दर्ज की जाती थी। यह कहना सही है कि मर्ग जांच में यदि हत्या का संदेह पाया जाता तो वह अपराध में परिवर्तित हो जाता। मैंने अनुसंधान किया है। यह कहना सही है कि मर्ग जांच में हत्या का संदेह नहीं पाया गया। यह कहना सही है कि देहाती नालिसी होना भी नहीं पाई गई। यह कहना सही है कि यदि मर्ग जांच के दौरान हत्या का पता चलता तो उसमें उल्लेख होता। स्वतः कहा कि मर्ग जांच में कोई बयान नहीं हुए। With intimation to the doctor when they had given, it is the case of the prosecution itself that they have given intimation to the doctor. PW1, the eyewitnesses have said that we have also intimated the doctor regarding the incident. They were not present. This person says come, lordship, after the postmortem. That is demonstrated, lordship, when they say मर्ग सूचना प्रदर्श P15 में ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति अशोक यादव को मृत अवस्था में लाया था। यह कहना सही है कि नाम नहीं बता सकता, उसकी उम्र और ये जानकारी अच्छे से दे सकते हैं। Now very important aspect in this case is that in the hospital where he was taken, there is a police chowki over there, and that is that is lordship PW. PW11, lordship. PW11. Lordship, इसमें PW23, since my lord is are there, I will also read paragraph number 17.
यह सही है कि जहां मोटरसाइकिल जब्त की गई थी वहां खून के धब्बे नहीं पाए गए थे। ये प्रोसिक्यूशन का केस है कि ये मोटरसाइकिल से आए और इनको मारा और मारने के बाद फिर नीचे ले जाए, लेकिन जहां मोटरसाइकिल जब्त की थी वहां खून के धब्बे नहीं पाए गए। यह सही है कि ब्रिज के ऊपर जहां मोटरसाइकिल पाई गई वहीं से ब्रिज के नीचे खून के धब्बे और चप्पल और ये सब पाए गए हैं। ये पूरे अनुसंधान में पाया गया है कि ब्रिज के ऊपर अशोक को रोड से मारकर हत्या की गई है। यह कहना सही है कि पूरे अनुसंधान के दौरान ब्रिज के ऊपर घटना स्थल पर खून के दाग नहीं पाए गए हैं। नाउ लॉर्डशिप काइंडली सी PW11। PW11 lordship is the Pradhan Arakshak, HL Mishra. Yes. लॉर्डशिप पैराग्राफ नंबर 2, घटनास्थल थाने के लगभग 200 कदम की दूरी पर है। यह सही है कि किसी भी मौसम में पहुंचे 5 मिनट लगते हैं। यह कहना गलत है कि उसमें से एक अज्ञात व्यक्ति। लॉर्डशिप पैराग्राफ नंबर 3 आई विल रीड, दैट इज मोस्ट रेलेवेंट। मैं 16/12/2015 से रात्रि 9 बजे से 17/12/2015 के सुबह 9 बजे तक HCM के पद पर था। यह सही है कि 17/12/15 के 9 बजे तक मेरी ड्यूटी के दौरान अशोक के संबंध में हुई घटना के संबंध में रिपोर्ट नहीं लिखा गई। थाना इटारसी में शासकीय अस्पताल इटारसी की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। शासकीय अस्पताल इटारसी में पुलिस चौकी है। इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ देयर इज ए पुलिस चौकी लॉर्डशिप। यह कहना सही है कि पुलिस चौकी इसलिए है कि अस्पताल में आने वाले इमरजेंसी केस सूचना और कार्रवाई की जा सके। यह कहना सही है कि सुबह 9 बजे तक मेरी ड्यूटी एक अज्ञात व्यक्ति लॉर्डशिप एज पर द प्रोसिक्यूशन केस, बट एज पर देम PW1, as per them PW1 and all the persons have taken, but as per the prosecution case itself, exhibit P14 एक अज्ञात व्यक्ति था जो जानता था गांव का, वो लेके आया, उसको मृत अवस्था में वहां पर हॉस्पिटल में भर्ती किया। Then the ward boy has What intimated. is the evidence that they brought? Is there any documentary evidence that they took him to the hospital? No lordship, PW1 says they in the statement they say कि हम लोग लेके गए, Oral है, Oral documentary है। कुछ नहीं है। बस डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है। FIR में भी है कि हम लोग फिर सब लेके उसको अस्पताल गए और अस्पताल में ही चौकी है, वहां से जाते समय भी चौकी है। They did not intimate anywhere that such kind of incidents has taken place. And then after post-mortem, they have made this, they have come up with this story, lordship. Yes. Anything else? madam? Your lordship, on the point that when the death is not homicidal, this court, honorable court has inquired, lordship. (2003) Volume 2 Crimes, lordship. Page, paragraph Lordship, in the classitum first and then the paragraph, because 6. prosecution, lordship, last 5 line. Prosecution must prove homicidal death. Doctor admitted injuries found. Classitum मत करिए। अच्छा, Para 6 है ना? para 3, 6 and 5. नहीं, para 6 पढ़िए। Yes, lordship. Para 6. In absence of proof of homicidal death, the appellant cannot be convicted merely on the theory of last seen. They have gone with the deceased in the manner noticed herein before. Para 5, lordship, 3 from the top 3 lines. In order to convict appellants for an offence under 300, the first and foremost aspect is to be proved by the prosecution is homicidal death. The evidence on record produced by the prosecution falls short of the proof of homicidal death of Om Singh. According to the doctor, his face has been crushed. According to testimony, the injuries of the could be sustained in accident. The other one, lordship, 1972, AIR Supreme. Same principle. Same principle. That is AIR 72 Supreme Court 464, 464. lordship. Baldev Singh.
Anything else? And you are in custody since? Since lordship 25/9/2018 Date of judgment. date of judgment. That's all, madam? Yes, My lord, you please come this side. on behalf of the Sanjay Urf Sanju, my lord, the applicant in jail since 1/10/2000. Please be close to the microphone. Yes. Yes. My lord, the appellant has been jailed in since 10/1/2016, my lord. 10/1/16 से हम लगातार जेल में। My lord, एज पर अशोक यादव का बैलेंस खराब हो गया, वो गिर गया, सीने में पीठ पर राड मारे। उस समय हम चारों आवाज देते हुए उनके पास दौड़े, तभी स्कॉर्पियो सफेद रंग की स्टेशन की ओर से आई। उसमें से मुन्ना महाराज, विवेक तिवारी और प्रशांत राजा मोहल्ला गाली देते हुए नजदीक आए और गोली से जान से उड़ा दूंगा। इन चारों ने अशोक यादव को स्कॉर्पियो में डालकर पावर हाउस तरफ ले गए। इसमें फिर से लात मुक्का से मारने का एलिगेशन है। फिर कंप्लेनेंट अपने स्टेटमेंट जो देता है उसमें रिलेवेंट पैरा पढ़े देता हूँ माय लॉर्ड। PW1. आरोपी गण के पीछे आरोपी गण के पीछे सॉरी अशोक यादव की मोटरसाइकिल के पीछे संजू एवं ब्रजेश तिवारी मोटरसाइकिल के पीछे आते दिखे। आरोपी गण की मोटरसाइकिल को आरोपी संजय चला रहा था, पीछे ब्रजेश बैठा था। मस्जिद मीनार के पास आकर संजय तिवारी ने अशोक की मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया। ब्रजेश तिवारी ने अशोक के पीछे से सिर पर राड मारी, जिसमें अशोक यादव नीचे गिर गया। फिर ब्रजेश तिवारी ने अशोक को राड से पीठ और छाती में मारपीट की। संजय तिवारी ने लात घूंसों से अशोक को मारा। इतना ही FIR में नहीं है, स्टेटमेंट में इन सबके ये एलिगेशन। माय लॉर्ड, इसमें एक स्टेटमेंट और मैं पढ़ना चाहूंगा। PW20 माय लॉर्ड, जो छूट गया था। Yes. जैसे सूर्यवंशी का है माय लॉर्ड, PW20 उस पैरा 2 माय लॉर्ड। पैरा 2 की तीसरी लाइन से पढ़ रहा हूँ। यह कहना सही है कि प्रदर्श 15 में मृतक को लाने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, संख्या का उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है जो व्यक्ति मृतक को हॉस्पिटल लाया था, मृतक को पहचानने के संबंध में उसका नाम पता लिखवाना होता है। प्रदर्श 15 में इसका उल्लेख नहीं है। मृत्यु किस वजह से हुई, यह कहना सही है कि जांच कायमी धारा 100 के अंतर्गत की जाती है। मृतक को PM भेजने के पूर्व मेरे द्वारा धारा 100 के अंतर्गत जांच की गई थी। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा कालम 100 में मृत्यु के संबंध में जानकारी मिल पाई। मृतक की मृत्यु किस कारण से हुई, किसने चोट पहुंचाकर हत्या की है या एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, इसका उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि 100 पंचायतनामा में जिन व्यक्तियों का उल्लेख है मृतक के करीबी रिश्तेदार है। फिर माय लॉर्ड, नेक्स्ट पेज में 5वीं लाइन से माय लॉर्ड, यह कहना सही है कि 100 को PM के लिए इतने बजे 9:25 भेजा गया था। कहना सही है, तब तक मुझे पता नहीं था कि मृतक को कैसे और किसके द्वारा चोट पहुंचाई गई। Yes. और पैरा 4 में भी लास्ट लाइन में आया माय लॉर्ड, 6वीं लाइन से सही है कि रात 9:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक करीब मेरी नाइट ड्यूटी थी। उस दौरान रंजीत राजेश पहाड़ी अन्य व्यक्ति ने घटना की कोई जानकारी थाने में लिखित या मौखिक नहीं दी थी। यह सही है कि जब मर्चुरी पर पहुंचा था उस समय रंजीत राजेश पहाड़ी अन्य किसी व्यक्ति नहीं मिले थे। Yes. That's all. Government. अलर्ट 2 बार मेरी टेम्परेरी बेल भी होगी, उसका कोई मिसयूज मैंने नहीं किया। Government. Well, kindly appreciate para 76 and 77 in respect of no delay of delay FIR. पैरा 76 में पूरा डिटेल दिया है सर कि कब फोन आया कब क्या, तो पैरा 77 में उसकी फाइंडिंग दी है। मैं रीड मैंने पैरा 77
Yes. इस प्रकार घटना दिनांक के 77 का पूरा डिटेल दिया है और बढ़ इस प्रकार घटना दिनांक के साहने की प्रमाणित प्रतिलिपि से उपरोक्त अनुसार स्पष्ट हुआ है विलम्ब कि की बहस तो किसी ने की नहीं है कि FIR belatedly lodge हुई है. Nobody argued that. Why you are trying to justify it? नहीं, सर जो मर्ग स्टेटमेंट पहले नहीं वो सबका कहना है कि डिले वाले पे देयर इज नो आर्गुमेंट। मेरा ऐसा है कि तुरंत जो है FIR हुई है, इमीडिएटली हुई है, मार्ग इंटीमेट है, उसके बाद मार्ग के बाद जो है FIR रजिस्टर्ड हुई है। पैरा 77 में कोर्ट की फाइंडिंग है। काइंडली अपने पैरा 19 एंड 20 98. 19 चिकित्सक ने अपने अभिमत में मृत्यु का कारण शरीर के कई संवेदनशील आर्गन अंगों पर आंतरिक चोटों के कारण रक्त निकल जाने से मृत्यु होना बताया है। चिकित्सक ने मृत्यु की प्रकृति के संबंध में कोई निश्चित अभिमत नहीं दिया जा सकता व्यक्त किया है। मृत्यु 6 से 24 घंटे के अंदर होना प्रतीत होना व्यक्त कर अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एग्जिबिट 27 को अपने कथन एवं हस्ताक्षर से प्रमाणित किया है। उनके द्वारा पोस्टमार्टम करने के पूर्व एक 60 PM एग्जिबिट 28 तैयार की गई थी, जिसमें उनके द्वारा कई आंतरिक भागों पर कई चोटें होने के कारण रक्त निकलने से मृत्यु होना बताया गया था। उनके द्वारा तैयार 60 PM रिपोर्ट एग्जिबिट 28 है। इसके ऐसे एक भाग पर उनके हस्ताक्षर है। 20 में सर क्वेरी रिपोर्ट में पूछा गया है डिटेल क्या 100 परीक्षण में पाई गई चोटें प्राण घातक थी? मत हाँ, 100 पर पाई गई चोटें प्राण घातक थी। क्या 100 परीक्षण में 100 पर पाई गई चोटें मारपीट कर पहुंचाने से आ सकती हैं? मत हाँ। 100 परीक्षण में 100 पर पाई गई चोटें एंटीमॉर्टम थी अथवा पोस्टमार्टम एंटीमॉर्टम। 100 परीक्षण के आधार पर मृत्यु होमिसाइडल है। PM रिपोर्ट के आधार पर उक्त मृत्यु होमिसाइडल हो सकती है। काइंडली अप्रिशिएट पैरा 30 रिगार्डिंग इसमें 3 आई विटनेस, तीनों को कंक्लूजन दिया है। पेज नंबर 16 में और 11 पर 16 पेज नंबर 16 पैरा 30 के पीछे वाला सब 16 पेज नंबर में। Yes. सर 11 पढ़ा हूँ। ब्रिजेश पीछे बैठा था। ब्रिज के ऊपर मस्जिद की मीनार जो ब्रिज के बाजू में नीचे बनी मस्जिद की मीनार है और उक्त मीनार ब्रिज के ऊपर दिखती है के पास आकर आरोपी संजय तिवारी प्रेजेंट एप्लीकेंट ने मृतक अशोक की मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया। स्टार्टिंग सर इसी है और आरोपी ब्रिजेश ने राड से सिर पर मारा। सिर की चोट है सर जिससे मृतक अशोक यादव गिर गया। फिर आरोपी ब्रिजेश ने मृतक अशोक को राड से सिर, पीठ, छाती में मारपीट की। आरोपी संजय ने लात घूंसों से मृतक अशोक को मारा। यह देखकर चारों अर्थात रंजीत PW1, राजेश PW2, पहाड़ी PW9 तथा सुशील आवाज देते हुए बचाने दौड़े। तभी वहां एक स्कॉर्पियो आई। उसमें से आरोपी सतीश, टमंटू और सुशांत, सुन्ना महाराज और सुरेंद्र, ये भी एप्लीकेंट है सर, और विवेक, ये भी एप्लीकेंट है। टमंटो ने पिस्तौल निकालकर उन्हें मां की अश्लील गाली बकते हुए धमकी दी कि पास आए तो उन्हें गोली से उड़ा देंगे। वे लोग डरकर वहीं रुके रहे। तब उन चारों आरोपियों ने मिलकर अशोक के साथ मारपीट की। ब्रजेश ने राड से, सुन्ना ने डंडा से, सुन्ना जो एप्लीकेंट है डंडा से एवं बाकी ने लात घूंसों से मारपीट की। उसके बाद आरोपी गण ने अशोक को मारते हुए घसीटते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी में डाला और ब्रिज के ऊपर से होशंगाबाद की ओर जाने वाले रास्ते में स्थित पावर हाउस MPB कार्यालय की ओर ले गए। तीनों आई विटनेस साक्षी रंजीत, राजेश पहाड़ी तथा उनके साथ उपस्थित साक्षी सुनील ने 2 मोटरसाइकिल से उनका पीछा किया। तब आरोपीगढ़ ब्रिज के नीचे स्थित मस्जिद के पास ले जाकर अशोक यादव को गाड़ी से नीचे डालकर वहां से भाग गए। उन चारों साक्षियों ने मृतक अशोक को घायल अवस्था में देखा। उसके सिर से खून निकल रहा था। इस प्रकार आई विटनेस की साक्ष्य से घटना के 2 स्थान पाए गए। प्रथम स्थान इटारसी ओवर ब्रिज के ऊपर सड़क पर मारपीट करने और घसीटकर गाड़ी में डालकर ले जाने का है तथा द्वितीय स्थान गाड़ी से होशंगाबाद की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रिज से नीचे उतरते हुए बाईं ओर मुड़कर रास्ते से मस्जिद के पास मृतक के घायल अवस्था में गाड़ी में फेंक कर जाने का स्थान है। तीनों आई विटनेस ने घटनास्थल की पहचान स्पष्ट की है।
काइंडली पैरा आकर अशोक यादव को गाड़ी से नीचे डालकर वहां से भाग गए। उन चारों साक्षियों ने मृतक अशोक को घायल अवस्था में देखा, उसके सिर से खून निकल रहा था। इस प्रकार आई विटनेस की साक्ष्य से घटना के 2 स्थान पाए गए। प्रथम स्थान इटारसी ओवर ब्रिज के ऊपर सड़क पर मारपीट करने और घसीटकर गाड़ी में डालकर ले जाने का है, तथा द्वितीय स्थान गाड़ी से होशंगाबाद की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रिज से नीचे उतरते हुए बाईं ओर मुड़कर रास्ते से मस्जिद के पास मृतक के घायल अवस्था में गाड़ी में फेंक कर जाने का स्थान है। तीनों आई विटनेस ने घटना स्थल की पहचान स्पष्ट की है। काइंडली पैरा 54 माइल 54 साइड वेरी डन। Yes. धारा 149 आईपीसी के प्रावधान अनुसार यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका तय किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभव जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है वह उस अपराध को दोषी होगा। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों में परिस्थितियों में अभियोजन साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि आरोपी ब्रजेश द्वारा पीछे से राड से मारने पर अशोक के रोड पर गिरने के बाद सभी आरोपी गण ने मिलकर मारपीट की, जिससे कि उनके विधि विरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाना वे संभव जानते थे। इस कारण प्रत्येक आरोपी घटना के समय विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होते हुए मृतक अशोक के प्रति कारित अपराध का दायित्व ने उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत स्वयं सो में सारता यह अभी निर्धारित किया गया है कि वह यह सुस्थापित है कि एक बार जब यह स्थापित हो जाए कि विधि विरुद्ध जमाव का एक समान उद्देश्य था, तो यह आवश्यक नहीं रह जाता है कि विधि विरुद्ध जमाव के हर सदस्य द्वारा कुछ कृत किया जाए। उन्हें धारा 149 आईपीसी के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता है। उक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण में सभी आरोपीगण में से कुछ आरोपीगण राड, डंडा, देसी पिस्टल रूपी घातक आयुधों से सुसज्जित हुए सभी द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया गया, जिसका समान उद्देश्य अशोक पर इस प्रकार बल या हिंसा का प्रयोग करना कि ऐसे आयुधों से मृत्यु संभव हो। तब जबकि आई विटनेस ने सभी आरोपीगण द्वारा मिलकर राड, डंडा एवं लात घूसों से अशोक को मारपीट करने एवं घसीटने की पुष्टि की है, तब प्रत्येक आरोपी द्वारा घातक आयुध से सुसज्जित होकर कुछ कृत किया जाना आवश्यक नहीं होना पाया जाता है। लात घूसों से मारपीट कृत करने वाले आरोपी भी घातक आयुध से सुसज्जित होकर आरोपी द्वारा की गई मारपीट के कृत्य के समान दायित्व होना पाए जाते हैं। That's all. Mr. Venkat. My lord, in this case, 3 eyewitnesses are there, my lord, and they have deposed against the appellant, my lord. In paragraph 1, my lord, Ranjit, my lord, there is a specific allegation against the all persons, my lord, and FIR has been lodged by this PW1, that is Exhibit P1. In FIR, there is allegation, my lord, first, my lord, जिसका भी आपने आर्गुमेंट किया, appellant number सुनना महाराज, as per the allegation of FIR, my lord, motorcycle was driven by the Sunna Maharaj, and Brajesh was pillion rider, my lord, and he chased the motorcycle of deceased Ashok Yadav and overtake the motorcycle of the Ashok Yadav. जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो सुन्ना चला रहा था और उसको मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया, and Brajesh inflicted a rod blow on the head region of the deceased, my lord, and thereafter, my lord, all persons came on the spot from the Scorpio and threatened to witnesses. There is a specific allegation in the FIR कि इनने पिस्टल निकाल के गवाहों को धमकाया कि कोई भी पास आए तो हम गोली मार देंगे। Thereafter, my lord, उसको डिसीज को उसमें स्कॉर्पियो में डालकर ले जाते हैं और फिर उसको मस्जिद के पास उन्हें फेंक कर चले गए। एंड माय लॉर्ड, एज पर दी माय लॉर्ड डॉक्टर PW10, आपने बोला कि 5 इंजुरीज है, नॉट 5 इंजुरीज, देयर वर 9 इंजुरीज आर देयर। मे काइंडली से एविडेंस ऑफ PW10 External file. माय लॉर्ड। आई रीड इट मैन। Yes. टेम्पोरल रीजन पर एक फटा हुआ घाव था जो 9 गुना 2.5 सेंटीमीटर के लगभग था। दिस इंजुरी हैज बीन काज्ड बाय माय लॉर्ड अपीलेंट नंबर 2।
एंड माइलट स्वेलिंग विद कंट्यूजन जो पीछे की और बाएं तरफ स्केपुलर रीजन के नीचे था, जिसका आकार 10 गुणित 5 सेंटीमीटर था। स्वेलिंग विद कंट्यूजन पेट के बाएं तरफ, जिसका आकार 8 गुना 4 सेंटीमीटर था, जिस पर 2 गुना 2 सेंटीमीटर रगड़ का निशान था। एब्रेजन इज देयर माइलट, दाएं बाएं घुटने पर कई छीले निशान थे। और ये जो लात घुटनों से मारना बताया, ये इंजुरी इससे आ सकती है बिकॉज एब्रेजन आर देयर माइलट। बाएं पैर के अंगूठे पर एक एब्रेजन जिसका आकार 1 गुना 1 सेंटीमीटर था, वो चोटें मरने की पूर्व की थी। खोपड़ी के लेफ्ट टेम्पोरोपैराइटल रीजन पर फ्रैक्चर पाया था। फ्रैक्चर वाज आल्सो फाउंड माइलट। मृतक के बाएं तरफ तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं तथा दाएं और की तीसरी, चौथी रिब्स पर फ्रैक्चर था। रिब्स और आल्सो फ्रैक्चर्ड माइलट। दाएं फेफड़े के अपर और मिडल लोब में लेसेशन वुंड जो 5 सेंटीमीटर था। बाएं फेफड़े में अपर लोब में लेसेशन वुंड जो 5 सेंटीमीटर था। इंट्राथोरेसिक रीजन में लगभग ½ लीटर रक्त भर गया था। प्लिया में लेसेशन वुंड जो करीब 6 सेंटीमीटर था। बाई किडनी में लेसेशन वुंड जो 5 सेंटीमीटर करीब 1 लीटर रक्त इंट्रोपेरिटोनियल कैविटी में भरा था। सो मेनी इंजुरीज आर देयर मैडम, as many as violent 9 injuries are there with fractures mallet. And mallet, as per the exhibit P14, exhibit P14 is only for intimation regarding death of the deceased mallet. And FIR has been lodged by PW1, that is written by PW13 mallet. PW13 दिनांक 17/12/2015 को, सॉरी मैम, थाना इटारसी में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रंजीत यादव ने थाना आकर एक मौखिक रिपोर्ट अशोक यादव की हत्या के संबंध में लेख कराई थी। रंजीत यादव द्वारा जैसी रिपोर्ट लिखाई थी मैंने वैसी ही लेख की थी। रिपोर्ट मैंने अपराध क्रमांक 100 ब्रजेश तिवारी, संजू तिवारी, सुन्ना महाराज, प्रशांत तिवारी, सतीश तिवारी व एक तिवारी के विरुद्ध अपराध 100 भारतीय दंड विधान पर अपराध पंजीबद्ध किया था। रिपोर्ट मेरे द्वारा लिखी जो एग्जिबिट P1 है। रिपोर्ट इज वेरी मच देयर and prompt report is there. Thereafter, my lord, investigation was conducted by PW23, and thereafter, my lord, on the same day, he has recorded statement of the witnesses. उसी दिन witnesses के statement हो गए 161 के, और in 161 statement there is allegations, my lord. And my lord, as per the my lord FIR, my lord, and as per the deposition of the witnesses, Sanju Tiwari driven the motorcycle and Brajesh Tiwari inflicted right blow on the head region of the deceased violent, and Tamantu took out a pistol. उसमें उसका डिस्क्रिप्शन है, देयर इज डिस्क्रिप्शन कि उन्होंने विटनेसेस को थ्रेटनिंग दी कि अगर कोई भी पास आए तो हम मार देंगे। तो वेरी मच देयर इज वेरी मच कॉमन इंटेंशन ऑब्जेक्ट इज देयर माय लॉर्ड, बिकॉज माय लॉर्ड दे वर मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली और स्कॉर्पियो में पटक के उसको लेकर गए हैं। That's all, Mr. Moran. And my lord, my learned friend cited some judgment, but that is not applicable in this case, my lord. 2003, 2 crimes SC 111. In this case, my lord, there is evidence of last seen conviction was liable to be set aside. But in this case, there is direct evidence. 3 eyewitnesses are there. And postmortem, as per the postmortem report, 9 injuries are there with fractures, my lord. इसमें तो केवल वो उसमें जो लास्ट सीन का एविडेंस था, इसके कारण उन्होंने उसको बेनिफिट दिया है। एंड अनदर जजमेंट इज माय लॉर्ड 1972. In this case, my lord, position is that earlier, my lord, 2 incidents had taken place. In first incident, some other persons caused injury to deceased, my lord. Thereafter, my lord, deceased ran away from the spot, and appellant chased the deceased and caused injury by lathis to deceased, my lord. ड्यू टू दैट रीजन ही फेल डाउन ऑन द स्पॉट। तो उनका ये कहना था कि वो स्पॉट पे गिर गया था, उससे उसको चोटें आई है। और इसमें जो उन्होंने सजेशन दिया है उसका कि ऊपर से गिरने से, बट देयर इज नो डिफेंस माय लॉर्ड ऑन दैट पॉइंट। ऑन दैट पॉइंट देयर इज नो क्रॉस एग्जामिनेशन माय लॉर्ड। इनका केस ही नहीं है कि वो जो एक्सीडेंटल डेथ थी उसकी। That's all, Mr. Moran. इज नो क्रॉस एग्जामिनेशन माय लॉर्ड। इनका केस ही नहीं है कि वो जो एक्सीडेंटल डेथ थी उसकी। That's all, Mr. Moran. My lord, I have already cited some judgments, my lord.
एक कॉपी आपको दे, दो कॉपी प्रिपेयर की थी मैंने. This is my 1985 volume 4 Supreme Court cases 80 FIR where FIR is paragraph is my lord 4 and 14. क्या what is the principal laid down? प्रिंसिपल लेट डाउन की FIR अगर दर्ज हुई है और उसमें जो है वो कोई फॉल्स फैब्रिकेशन नहीं है. This you are citing in your favor or madam's favor? इन आवर फेवर माय. But this says that whatever is written in the FIR should not be disbelieved ordinarily. FIR should not be because my lord prompt FIR is there. Yes, and the prompt FIR doesn't say that the Scorpio, the persons who were traveling in the Scorpio has committed any overt act except carrying the body. हाँ, carrying the body. So then if But we my lord, later on, my lord, witnesses depose are the. on this judgment only. As per that FIR, that limited role is to be accepted. नहीं, मैं इसमें आगे ये है my lord, testimony of the eyewitnesses found to be trustworthy. But then it runs contrary to the FIR. अब FIR में तो केवल एलिगेशन, जो मैडम ने आर्गुमेंट किया, only that evidence is there. Asking you whether you cite Yes, my lord. judgment Only that evidence is for there. or against. On point that evidence is there. Yes. कि वो later on came on the spot, my lord. And thereafter, my lord, as per the deposition of the witnesses, कि बाद में उन्होंने कहा कि लात घूसों से रॉड से मारा. Anything else, Mr. Gangrade? That's all, Mr. Gangrade. Anything? सुन्ना महाराज के अगेंस्ट तो जो अपेलेंट नंबर 1 के तो एविडेंस है my lord, कि कैम ऑन दी मोटरसाइकिल, जो आपका अपेलेंट नंबर 1 है. He was driving the motorcycle. Yes, my lord. He was assault का इन पर असॉल्ट का ब्रिजेस पे, बट ही वाज ड्राइविंग द मोटरसाइकिल my lord. we consider. Number 9, along with the 2022 volume 7 157. This also I will quote then. For what purpose? For the purposes that the eyewitness who have witnessed, they are totally unreliable and should be discarded as totally unreliable witnesses. We consider. Yes. Next. number 9, along with connected case. Well, in this case, Malad, I filed an application for grant of temporary bail